नमस्कार। दिल्ली पुलिस वीक में आपका स्वागत है। हर साल 16 फरवरी को हम दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल ऑन द 79th रेजिंग डे ऑफ दिल्ली पुलिस वी ब्रिंग टू यू अ स्पेशल पॉडकास्ट टाइटल्ड वुमेन इन खाकी। मेरा नाम है डीसीपी ईशा सिंह और मेरे साथ यहाँ है नेहा यादव मैम, who is currently posted as additional DCP of Shahadra district, Anjita Chepyala ma'am, who is DCP of the Special Police Unit for Women and Children, and Inspector Neetu Ji, who is currently posted in the 1930 Cyber Helpline and the IFSO unit. I welcome you all to this session, and without further ado, let's dive into the questions. Neha ma'am, I will start with you. Shahadra district को काफी challenging माना जाता है. So we would like to know कि ऐसे जिले को संभालने में कैसी चुनौतियां आती हैं and how do you feel that you are able to manage the workload and the crime rates etc. शाहदरा डिस्ट्रिक्ट जैसे आप जानते हैं ट्रांस यमुना की साइड पे पड़ता है, तो जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैज़ मिक्स्ड पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आता है कि आप मिक्स पॉपुलेशन में जिनकी ज़रूरतें अलग हैं, जिसमें क्राइम अलग होता है, लेडीज़ के साथ का क्राइम आप देखेंगे कि तबके से चेंज हो जाता है। ऐसी जगह में काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि हमें पहचानना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज़ से पीछे कौन से तार जुड़े हुए हैं और वो आगे कैसे अपने और ज़्यादा उसका आउटकम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो वो कनेक्शन बनाना एंड स्टाफ के साथ हमें काम करना, जिनकी पहले से ही बहुत अच्छी पकड़ है, उसको एकदम से आके कमांड करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। एंड आप कैसे इन चैलेंजेस को डील करती हैं मैम? सबसे पहले मेरा जो तरीका है वो है टीम वर्क का। तो मैं अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाती हूँ। मेरे पास कोई भी कंप्लेनेंट आता है, सो वी अटैच वन ऑफिसर विद द कंप्लेनेंट, जो पुलिस का डायरेक्टली बता दे कि बिना कंप्लेंट को दोबारा हमारे पास आए, उसको घर बैठे उसको फ़ोन पे उसके जो भी स्टेटस उसको चाहिए या हेल्प चाहिए, तो उसको बार बार धक्के ना खाने पड़े। तो मेरा ये स्टाइल है। मैं टीम्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो सबको अपना काम पता होना चाहिए एंड फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर फीडबैक मैकेनिज्म के बिना कोई भी सुपरविजन सक्सेस नहीं हो सकता। That's amazing, ma'am. कहा जाता है that feedback is the greatest gift that there is for all of us to improve. So it's really amazing to know that Shahadra is in great hands with all these proactive measures that are being taken by you. Anjita, ma'am, coming to you. SPUVAC is the special police unit dedicated to women and children. And आज जैसे हम जानते हैं, women and children's safety is the paramount priority of the government. तो आपका प्राइमरी रोल क्या है एंड कैसे केसेस आप डेली बेसिस पे देखती हैं, डील करती हैं? So as you said, the SPUVAC stands for Special Police Unit for Women and Children. Though I don't agree with that, I would always love to see women and children not in the vulnerable section, but on the other side of it, empowered. So this unit actually takes up that task of moving these from the vulnerable section to being the most empowered ones. So in SPUVAC, primarily we deal with, like you said, women and children issues. In addition to that, we also look after the senior citizen safety also. So while in SPUVAC, mostly we deal with the matrimonial discord complaints, and wherever there is required after doing due counseling and all that, we register the cases and we ensure that overall the justice is given to the women. While dealing with the children issues, SPUVAC acts as a nodal officer and for implementing the Juvenile Justice Act guidelines. And we also conduct trainings to all the staff so that they are adept in dealing with the juvenile issues while in the field. And when it comes to senior citizen security, we ensure that we have regular meetings with them and we conduct regular workshops for them. Like as you've seen recently, senior citizens are falling prey to the digital arrest. So across Delhi, in coordination with the local police and all, we conduct sensitization programs for them. So these are one section of it, and SPUVAC also organizes one of the India's largest outreach program, that is Shashakti.
through Shashakti, we provide self-defense training to girls and women, and also do gender sensitization of boys also, which is very much needed in today's time. While empowering the girls in self-defense techniques, the boys also need to be sensitized towards the women issues. That is another task which SPOVAC takes up. This is a very interesting issue that you raised, ma'am, that along with empowering our girls, it's important to sensitize our boys as well. We'd love to know more about that. In addition to one more thing, which is how does somebody get in touch with SPOVAC? So we have women can dial the women helpline number, and we always say that for in case of any emergency, the only one number you have to remember is 112. So you can reach out to SPOVAC or to any police, any emergency services through 112. All right. Coming to Inspector Neetu ji, I want to know, you are posted in 1930 helpline and IFSO. दोनों यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। मैम, जैसा कि आज का युग जो है हमारा डिजिटल का है, तो क्राइम साइबर बहुत ही ज़्यादा, एवरीबडी इज़ यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो साइबर से रिलेटेड क्राइम डे टू डे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड एंड वुमेन से रिलेटेड साइबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने वाले उनके साथ क्राइम में है। स्पेशली आई एम डीलिंग 1930 हेल्पलाइन, तो वहाँ पर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रिपोर्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड में आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करके लोगों का पैसा जो फ्रॉडस्टर लेके जाते हैं उसको रुकवाना, उनको वापस उन तक पहुंचाना, उनको इंस्टेंट रेमेडीज़ देना, ये सब अलग अलग एस्पेक्ट पे यहाँ पर काम हो रहे हैं। I4C के साथ मिलकर इसमें अलग अलग, जैसे दिल्ली में हम लोग EFIR का प्रोविज़न है, 1 लाख से ऊपर जब भी किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो EFIR दिल्ली पुलिस अपने आप में जो कर रही है, दिल्ली पुलिस में ही ये प्रोविज़न है कि EFIR हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ IFSO जो यूनिट है हमारी, वो दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ टूल्स, सारे साइबर से रिलेटेड दिल्ली पुलिस में जितना भी ट्रेनिंग लैब है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हैं और केसेस का इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारी IFSO यूनिट में होता है। बीइंग पार्ट ऑफ IFSO, आई एम डीलिंग फीमेल रिलेटेड केसेस, तो उन सबको देखते हुए लगता है कि आज के दिन में ये एक बिल्कुल नया चैलेंज है, बिकॉज डेली लोग नए नए तरीके से, तरीका डेली नया हो रहा है। तो ये कुछ दो चीज़ें इस पे फॉलो अप क्वेश्चंस आई हैव। पहली बात तो आपने कहा IFSO में विमेन रिलेटेड केसेस, तो ये कौन सी केसेस हुई स्पेसिफिकली और ये क्या क्या नए नए तरीके हैं? आज के दिन में मैम हम सभी में सभी लोग फ़ोन से कनेक्ट हैं, फ़ोन पे सभी लोग एक्टिव रहते हैं, सभी लोग रहना भी चाहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे आ चुके हैं कि बच्चा, वीमेन, हाउसवाइफ, वर्किंग वूमेन, हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे है। तो सोशल प्लेटफॉर्म जितना इजी एक्सेस है, उतना ही उसके साथ थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके साइबर ट्रोलिंग का जो मैटर है, बुलिंग है और फिशिंग वगैरह है, सेक्सटॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं इसमें, फीमेल्स को टारगेट करते हुए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, और हम अपनी सारी निजी जानकारियाँ, इवन देन हम अपना पूरा सब कुछ ही सोशल लाइफ में जीते हैं, सबको अच्छा लगता है। अगर हम कहें कि रेमेडीज़ के तौर पे कि हम अवेयर करें, बंद करें, बंद इज़ नॉट सॉल्यूशन, अवेयरनेस इज़ सॉल्यूशन। तो लोग यूज़ करने के लिए तो अवेयर हैं, बट उससे आने वाले खतरों से निपटने के लिए उतने अवेयर नहीं है, जिसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस की ये यूनिट काम कर रही है। थैंक यू। एंड कमिंग बैक टू यू मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि हम सब जानते हैं कि पुलिस का जो एक कोर रोल होता है वो लॉ एंड ऑर्डर होता है, और लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। आप कैसे उन चैलेंजेस को डील करती हैं ओवर द इयर्स? जब आप यंग प्रोबेशनर आई थी कंपेयर्ड टू व्हाट यू आर नाउ, आपकी लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिकली में क्या जर्नी रही है? थोड़ा अगर यू कुड शेयर विद अस। लॉ एंड ऑर्डर मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे पूरे प्रोफाइल में। लॉ एंड ऑर्डर, मैं पहले चंडीगढ़ में भी काम कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी इमेंस लॉ एंड ऑर्डर होते थे। मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है कि आपका पहले होमवर्क कितना है।
आपको पहले जानना है कि कौन से प्रोटेस्टर्स या कोई भी चीज़ जिसके जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड्स क्या है, मुद्दा क्या है, वो सब समझना। उसके बाद आप एक कमांड चैनल रखिए एंड अपने जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, जितनी भी होती है, वो एक कमांड के ऊपर चले। उसमें डिस्क्रिशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। एंड अपना पूरा जो पहले से हम कहते हैं कि जिस दिन आपका लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेक्टेड है या एकदम से भी हो रहा है, तो जितना आपका सामान वो पूरा इंटैक्ट रहे, किसी चीज़ की लास्ट मोमेंट पे गुंजाइश नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि कहीं पे कुछ भी आउटबर्स्ट कर जाता है। सो उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ओपन टू टॉक्स, मतलब वहाँ पे कभी भी शाय भी नहीं करना चाहिए कि कोई आपसे आके बात करना चाहे और आप बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे जो सोल्यूशंस होते हैं वो बात करके भी निकल जाते हैं। बहुत सारे हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो ऐसे भी फिजल आउट हो जाते हैं कि जस्ट आपके पास कोई था बात करने के लिए जिनसे वो बात करना चाहते थे। अंजिता मैम, आपसे भी मैं इस रिगार्ड में पूछना चाहती हूँ, बिकॉज यू हैव ऑल्सो बिन इन लॉ एंड ऑर्डर क्वाइट अ बिट। मैम ने बहुत सही बोला दैट वन मस्ट डू देयर होमवर्क वेल एंड दे शुड नो दैट व्हाट देयर सब्जेक्ट्स आर, व्हाट देयर डिमांड्स आर, मुद्दा क्या है। बट ये आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, बट कभी कभी इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट वी टेक, द सिचुएशन समटाइम्स गोज आउट ऑफ हैंड बिकॉज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो उस मोमेंट में आप लोग क्या, आपके थॉट्स होते हैं जब आप टैकल करते हो, और आप क्या मेजर्स भी लेते हो? See, tayari is one aspect of it. You have to be prepared in any circumstances. You prepare for what you know and you make arrangements. But हमेशा ऐसा नहीं होता है on the field. So there will always be something which will come up which you are not prepared for. So that is when a leader has to step in. That is when as an officer you have to step in. You have to plan at the moment and you have to also issue directions to your to the staff. And one thing which always worked for me personally during all this handling law and order arrangements is lead from the front. Unless you are there, you guide them, you talk to them, you have to lead from the front. Only then your staff will actually follow you and also follow your directions. So that is what I've always learned, and I always stand by that also. I have been ma'am's probationer, so I have seen that, and I think a lot of law and order that I learned from you, ma'am. Coming to my next question, ma'am, on the ground, what do you feel are the biggest challenges that women and children are facing? सबसे पहले मैं दोनों चीज़ों को भागना चाहूँगी। सबसे पहले जो लेडीज़ का आपने देखा, लेडीज़ और चिल्ड्रन के दो अलग अलग इश्यूज़ चलते हैं। चिल्ड्रन अब्यूज़ जो भी सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंज आज की डेट में है, बिकॉज ये वाला जो क्राइम है ये तो बाहर नहीं आ पाता जब तक बच्चा किसी के सामने डिस्क्लोज ना करे। यूजुअली जिसने अब्यूज़ किया होता है वो फैमिली मेम्बर ही होता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर कि ये क्राइम को बाहर लेके आएंगे, पुलिस इन्वॉल्व होएगी, फैमिली में आएगी चीज़। तो ये वाली चीज़ पॉक्सो एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जिसको भी पता चले सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये पुलिस तक ये बात लेके आए कि ये अपराध हुआ है। सेकेंडली, कमिंग टू द विमेन पार्ट, विमेन में ये वाला इशू बहुत है कि मैरिड विमेन के साथ ये इशू आता है कि फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस है। हर दूसरे घर की कहानी है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, लेडी प्रताड़ित की जाती है, पिटाई कर रही है, मतलब हर तरीके से कोई, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो कहते हैं कि दूसरी मायका होता है वो भी ज़्यादा उनके सहयोग में नहीं आता है। तो उस वे में सबसे पहले जो एजेंसी आती है वो पुलिस ही आती है कि जिसके पास वो आ सके। तो हमारा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो हम उनकी जो मानसिकता उस टाइम पे होती है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है, हम पहले उसको थोड़ा सा हेल्प कर सके ताकि वो रिवाइव कर सके और वो इतनी सपोर्ट हमारे से लेके आगे ये क्राइम जो उसके साथ हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। क्योंकि ये दोनों क्राइम ऐसे हैं कि जहाँ पे सपोर्ट खुद से अंदर से नहीं आ पाती है, द सपोर्ट हैज़ टू बी डिराइव्ड फ्रॉम आउटसाइड। इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने कहा वुमेन डेस्क है, वुमेन हेल्पलाइन है, उसमें ये माध्यम बहुत इजी पड़ जाता है उनके लिए कि एक उनको पता है कि यहाँ पे हमें बस जाना है, हमें धक्के नहीं खाने, हमें पता नहीं है बाकी चीज़ों का, हमें बस यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे हमें हेल्प मिल जाएगी। एंड फ्रॉम पुलिस एंगल जो स्टाफ होता है हेल्प डेस्क का, वुमेन हेल्प डेस्क का, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होता है कि जैसे ही कोई वुमेन कंप्लेनेंट आए तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है,
तो बोथ वेज, मतलब ये एक तो हेल्प भी हो जाती है, एट द सेम टाइम द स्टाफ इज वेरी स्पेशलाइज्ड एंड डिप्यूटेड अकॉर्डिंगली. मैम, यू हैव रेज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मुझे लिटरली गूज़बम्स हुए सुनते हुए, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर कि जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो वो सपोर्ट अंदर से नहीं आ सकता. द सोसाइटी हैज़ टू स्टेप फॉरवर्ड एंड support women and children when they are subject to such crimes. नीतू जी, साइबर पे अगर आज हम देखें, विमेन के इतने ज़्यादा हरासमेंट और बुलिंग हो रही है, सबकी हो रही है, बट मैं ये कहूँगी कि women have it worse on the internet. I think that is uncontested. तो जो मेरी खुद पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है, वल्गर हो जाता है कभी कभी कंटेंट. इट्स नॉट जस्ट सिंपल अब्यूज. तो विमेन का स्पेस पब्लिक स्फीयर में, साइबर स्पेस में श्रिंक करने लगता है. विमेन 10 बार सोचेंगी कुछ पोस्ट करने में, कुछ लिखने में, अपना ओपिनियन बताने में. तो आपकी इस रिगार्डिंग दिस आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और आप लोग क्या मेजर्स लेते हो इस ऑनलाइन हरासमेंट, बुलिंग और स्टॉकिंग को एड्रेस करने के लिए? ऑनलाइन हरासमेंट, बुलिंग, स्टॉकिंग या किसी भी तरह के अब्यूज़ के लिए विक्टिम हैं उसकी, तो एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट आप कर सकते हैं. एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट करने का आपको फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको अपनी पहचान भी उजागर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप किसी भी तरह से बुलिंग या कोई आपको ट्रोल कर रहा है, किसी से आप परेशान हैं, अननोन कॉन्टैक्ट से आप इस तरह की चीज़ें हैं, उस सब को एनसीआरपी पोर्टल पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं. नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं. अभी हमने दिल्ली पुलिस ने इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क किया है, जिसके बाद से हर डिजिटल या साइबर फ्रॉड को हम थाने में जाकर प्रॉपर अपना एविडेंस दिखाकर हेल्प लेकर रिपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं पर रिपोर्टिंग वाले एस्पेक्ट पे पीछे हटते हैं. मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि एक स्कूल में जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ तो बहुत छोटी बच्ची एक दिन बाद अपनी मैडम के पास गई एंड शी टोल्ड समथिंग कि मुझे इस तरह का चीज़ है. मैम ने हमें रिपोर्ट किया 100 में. उसके बाद जब हमने उस पर काम किया तो मैम आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ उस पर काम करके मतलब मेरा दिमाग काफ़ी खुल गया कि हम सभी सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा नहीं, पर हमारा मतलब आप मानिए 25 से 30 बच्चे उसी सेम तरह की चीज़ से शिकार थे. बच्चा प्लस में बच्चों की साइकोलॉजी में मैंने जो महसूस की, 6, 7, 8, 9, 10 की जो बच्चियां हैं, इनके ऊपर सोशल मीडिया पे रहने का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो बच्चियां प्लेटफॉर्म छोड़ने की बजाय हर तरह के हरासमेंट फेस करने को तैयार थी. तो ये जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, काउंसलिंग के जो प्रोग्राम है, वो काफ़ी उस साइलेंस को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. और मैं इस वाले केस से या इन जनरल जो भी मेरे पास चीज़ें आती हैं, मुझे उनसे यही समझ में आता है कि बीइंग पेरेंट्स, बीइंग फ्रेंड, बीइंग सिस्टर, ब्रदर, हमें इस साइलेंस को तोड़ना है. आप आपस में, डिजिटल पे सबसे बड़ी मार है आपस में बातचीत कर. बहुत सही बात आपने बोली कि ये स्टिग्मा तभी ब्रेक होगा जब हम बात करना शुरू करेंगे. अंजिता मैम, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? Delhi Police also does so much for its staff also, because we have unusually long hours of work. In a way, we are not there for the most of the family functions, and over the period of time, we have seen that most of them have fall prey to depression also. So, as I think officers heading units, we also take care of our staff also. So when we identify that there is some person, some staff of ours who are facing such an issues, we also rightly step in at that time and offer them our help in whatever we can. एक चीज मैं पूछूंगी बिफोर कमिंग टू नीतू जी. मैम, आप जैसे कमिंग इनटू पुलिस, आई हैव आल्सो रियलाइज बहुत स्ट्रेस होता है. आप all the time you are seeing a lot of gory things as well. So how do you handle your mental health? What do you do? Both, all of you. But बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है. मतलब आपके पास ऐसे ऐसे क्राइम रिपोर्ट होते हैं एंड कई बार कंप्लेनेंट सीधा हमारे पास आ जाता है, बिकॉज
वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते बहुत सारी चीज़ें। तो वो पहले सीख करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में, और वो सुनते भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हर चीज़ ना क्रिमिनल पर्व्यू में बाद में जाती है, पहले आपको ना उसको इशू को एड्रेस करना पड़ता है, एंड उसमें बहुत इमोशंस लगते ही लगते हैं। मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने वर्क से इमोशंस को हटा के चलूँ, which I can do in my office work, जो आपका फाइल वर्क होता है। बट when a complainant comes, उसके जब वो अपने इमोशंस के साथ वो पूरी आपको कहानी सुना रहा होता है, I am not that mechanical कि मैं वो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए होना I don't know कि डिग्री शुड चेंज। सो मेरे अंदर वो चीजें आती हैं, एंड आई थिंक इट हेल्प्स मी टू इनिशिएट द प्रोसेस, किक स्टार्ट इट एंड पुट द प्रेशर कि ये चीज प्रायोरिटी से टैकल हो जाए। तो मैं अपने इमोशंस को इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ कि वो मेरे काम में एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ऑलराइट, एंड नीतू जी आप बताइए आपकी क्या राय है मेंटल हेल्थ पे, हाउ वी शुड डील विद इट? पुलिस स्टेशन लेवल पे मैं बीइंग सब इंस्पेक्टर जैसे आई थी, तो मैं एक सब इंस्पेक्टर लड़की जब पुलिस में आती है वहाँ से लेकर इंस्पेक्टर तक के सफ़र को समझ पाई, देख पाई, उसमें जूझ पाई और निकल पाई। तो मैं इस सफ़र को अपने सफ़र से सीखते हुए मैंने देखा है कि जब यहाँ बच्ची ही आती है, बिकॉज एट द एज ऑफ लास्ट एज 25, तो इनिशियली आते हैं, और अभी वी आर ब्लेस्ड, वी आर इन दिल्ली पुलिस। सीरियसली यहाँ पे बहुत ही काम का जो माहौल है वो हमें कभी ये नहीं दिखाता कि हम महिलाएं हैं। जैसा मैम ने बताया हमारा होना, अभी कहा जाता है कि क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ा नहीं है, हमारे होने की वजह से लोग बोलने में आ गए हैं, इजी हो गए हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम आए थे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक महिला सब इंस्पेक्टर हमने देखी थी जो रेप और पॉक्सो केस को डील करते थे। डे टू डे हमने देखा, फिर 2-3 साल बाद हमने देखा कि हम थानों में एक महिला पोस्टिंग हो गई थी। साथ साथ उस महिला की लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो मैरिड हो जाती है, फिर वो फैमिली वे में जाती है, और काम का प्रेशर भी जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, सीनियर होते जाओगे, तो आपका पहले जैसा आपको एक्सपीरियंस माना जाएगा, आपके पास प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं मेंटल हेल्थ अपनी बनाने के लिए मैं सिर्फ एक काम करती हूँ, सब कुछ छोड़ के दौड़ना शुरू कर देती हूँ। दौड़ना, फिजिकल एक्टिविटी। जब बहुत ही सब कुछ ओवर हो जाता है, मैंने कहा चलो दौड़ के आओ 1 घंटा। 1 घंटे बाद दिमाग, बॉडी अपने आप सेटल हो जाती है, और अब लाइफ के फेजेस को पार करते करते बहुत स्टेबल लाइफ पे आ चुके हैं। तो मैं अब बहुत अच्छा दौड़ती हूँ, मैराथन रनर हूँ मैं अभी, और मुझे अब दौड़ने की लत सी लग गई है। तो आई जस्ट फील कि ऐसे ही हर पर्सन, हर इंडिविजुअल, हर फीमेल के पास एक हॉबी तो होगी। ऑलराइट, आई वांट टू, हमने काम की तो बहुत बातें कर ली, थोड़ा सा आपकी पर्सनल भी जानना चाहते हैं, पर्सनल स्टोरी, दैट मैम व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन द पुलिस सर्विस? ओके, मैं JNU की पढ़ी हुई हूँ, और कहानी वहाँ से शुरू होती, मतलब आपकी एक वो होती है ना कि छोटी सी लाइट आपको मिलती है एंड यू फॉलो द पाथ। सो वहाँ बचपन में कॉलेज से हमारे एक लेबर इकोनॉमिक्स की एक टूर जाता है, तो लैंडलेस लेबरर्स को स्टडी करने के लिए। और वहाँ पे जब हम सर्वे कर रहे थे तो हमें पता चला कि नदी ने अपना रास्ता मोड़ लिया और इनकी जमीन नदी ले गई। तो तब मुझे वो स्ट्राइक किया, तब मैंने सोचा नहीं था मैं सिविल्स में आऊंगी, तब मुझे स्ट्राइक किया कि हम सबके पास होप होती है कि एक दिन आप वो चीज कर लोगे, लेकिन उन लोगों के पास होप भी नहीं थी क्योंकि उनकी जमीन नदी ही लेके चली गई। तो दे डोंट, मतलब ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि किसी इंसान के पास होप कैसे नहीं हो सकती है। तब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया, एंड मुझे ऐसा था कि मैं जो भी एफर्ट्स डालूं मैं अपने आंखों के सामने वो चेंज देख पाऊं। बट एक पुलिस एंड डॉक्टर्स में कहूंगी कि ऐसे है कि क्राइसिस मोमेंट में लोग आपके पास आते हैं, जब उनके पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं तब वो आपके पास आएंगे एंड यू कैन इमीडिएटली हेल्प देम। दैट वाज माय किक। दैट इज ट्रू, एंड मैं तो कहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं पुलिस वाले फरिश्ते भी बन सकते हैं। अंजिता मैम, व्हाट अबाउट यू? For me, it has purely been an accidental landing here in police. I'm from the Telangana, southern part of India, and like everyone there, have their dollar dreams going to US and all that. So I'm an engineering graduate myself. So after that, even I was keen on going abroad to pursue my further studies. But then, due to some intervention from one family member, so who threw light that there is something called civil services also. Otherwise, in South you see everyone is a doctor or an engineer going abroad. So
then I thought that yes, this is something which would in which you can contribute a lot. So that was one thing which triggered, and then started preparing. Then never thought I would be in police. Very valuable, whatever that you give through the uniform. Neetu ji, आप बताइए. मैं हरियाणा से हूँ और बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। तो स्पोर्ट्स के जब भी गेम होते तो हमें प्राइज़ देने यूनिफॉर्म में जो भी ऑफिसर आते तो मुझे बड़ा ऐसा था कि जाना है। दैन स्पोर्ट्स में टचवुड मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हॉकी प्लेयर में रही हूँ। तो स्पोर्ट्स में पता चला कि स्पोर्ट्स बेस पे पुलिस में तो जगह नहीं है। देन आई प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड फिर मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम प्रिपेयर किया। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में मैं सेलेक्ट हुई। तो दिल्ली पुलिस हर जगह पे, हर फील्ड में जैसा असाइनमेंट मिलता है वहाँ पे सेवा का मौका तो ज़रूर देती है। Shanti Seva Nyay. That is our motto. And before we close, I'm going to have a short rapid fire round. Kyunki why not? And just quick questions, short answers only, ताकि हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में थोड़ी और जानकारी मिल जाए. Simple questions. First is best memory of Delhi Police. एक सीनियर सिटीजन ही थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। उनका आई थिंक 20 साल पुराना केस अटका हुआ था। वो हर जगह अपने हाथ पैर मार चुके थे, बट वो चीज़ हमने सॉर्ट आउट की। एंड उसके बाद दे वर सो रिलीव्ड कि जैसे होता है कि हाँ अब हमें ना जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, अब हम ना चैन से जी लेंगे। तो वो आई थिंक दैट मेमोरी, द फेशियल एक्सप्रेशन आई स्टिल रिमेंबर। आई रिमेंबर द होल मोमेंट एग्जैक्टली. So it had marked my head. So I think that memory was there. That's so nice. What about you, ma'am? I wouldn't specifically say something because there are so many instances where But where pick करना पड़ेगा, ma'am ने किया है. where a lot of people come and show their gratitude. Well, they don't have to. Also, it shows on their faces, as ma'am has rightly pointed it. And in addition to that, the gratitude is one aspect of it. You get a lot of, when you do your job, when you're doing justice to what you have been entrusted to, the kind of gratitude that you get from everyone is different. From the staff, from the people who you are, whom you are attending to, and all that. That is one aspect of it. There's a lot of gratitude that we get by doing our job rightly, and secondly, the satisfaction aspect of it. This, like, if you're doing your job rightly, then you also gain certain satisfaction. So that I think gratitude and satisfaction is something which I think Delhi Police has given me in immense measure. Immense measure. आपका? स्पेसिफिकली जैसे ही आपने क्वेश्चन पुट किया, मेरे दिमाग में एक मेरा केस पिक्चर हो गया। जो दो बहुत छोटे बच्चे 4 और 6 साल के, उनके साथ रेप केस था और ब्लाइंड केस था वो। तो वो जो केस पे पुलिस ने, हमने टीम ने जो भी काम किया, उस काम की वजह से एक ब्लाइंड केस ओपन अप हुआ, क्योंकि उससे जस्ट कुछ समय पहले वही जो अक्यूज़ था वो एक मेजर औरत के साथ कुछ छेड़खानी करके गया था। तो अब तो ये सारांश हो चुका है, बट उस वक्त रेंडमली उन सब चीज़ों पे क्लिक करके, उन सब लोगों को वो करके, और आखिर में उसका डीएनए मैच होके, एंड दिस इज़ मीन्स एक्चुअली मुझे बहुत ही, जब उसको कन्विक्शन हुआ तो आई जस्ट फील कि दिस इज़ द थिंग। So Isha, on behalf of all of us, I'm asking you that question. So what do you think that? Yeah. My God, that's a very. This is you are extra rapid putting fire. me in the spot. Well, why not? You're a women in khaki. Yeah. Obviously, people would love to listen to you too. Same actually, ma'am. Since I was a bit of like your probationer in North District, what I learned from Delhi Police was the joy of doing justice. There is no match to that. I was a lawyer before, so I've argued in courts, but standing on the ground and delivering justice and implementing the rule of law to the T. As a probationer, we are like, it has to be like this. Yes. Isha has been my probationer, and I would like to say that she has been hands-on on everything. She was there in 2 police stations, and you've done an amazing job there. People still remember you in Kotwali. And Ma'am, that's really sweet of you. But I always say, as all our seniors
and even our inspector has said here, policing is all about teamwork, and I think Delhi Police has really built strong foundations on ushering in young officers and hand-holding them to do their best, because that's what I still feel about my team in North. Even today morning I met ma'am after so long, and it just, that probation, you know, I just feel all my seniors looked out for me, and that is perhaps the greatest gift that Delhi Police gave me. Challenging, most challenging. What is the most challenging of being a woman in khaki? I think the most challenging is, it is not the gender as people say, being a women police officer. We are mostly asked this question, isn't it challenging being in policing and all that. I think the challenge is not about the gender here. It is about the long hours and the challenges that you face every day, because it is not like a regular thing. You are, every day is very different. So every day there is a new challenge. And also the I wouldn't say societal expectations, but as a police officer, I think as a women police officer, like everyone calls us, so we put pressure on ourselves too, because we have to balance the family as well as the job. So we put pressure on ourselves, but pressure, out of the pressure also we come out, we motivate ourselves a lot, and we try to do, you know, to do justice to both the things. So the challenges are umpteen, but I think a resolve to stand out of all this and perform is even bigger. I've seen you in action in that. What about you, ma'am? I think it's more or less the same, balancing your personal and professional life, because you don't know what's coming the next day. So you can't make any plans, you can't commit to any small movie also. I feel that so deeply. I just can't commit to anything, even for the next And your day. friends hate you for it. No, luckily I have very good friends. I want to mention I have wonderful friends. Okay, my friends are a little upset with me for all the weddings I've missed, but ये हो जाता है सर्विस में. आपका? मेरा यही है कि I'm always running against time. बटे हुए भागते रहते, हर किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करें. वो शादी अटेंड करने के लिए 10 मिनट तो चुराऊंगी. I mean, I think tasked with the security of guarding the safety and security of the national capital of the nation is no easy task. But आज आपने देखा हमारी phenomenal leadership दिल्ली पुलिस की जो है आपके सामने. It is thanks to the countless hours, मतलब उसको हम गिन ही नहीं पाएंगे कितने घंटे, कितना effort लगता है पुलिस की ड्यूटी में. But it is thanks to that we all sleep safe at night. Thank you so much, ma'am, Neetu ji, for joining, and it has been phenomenal. So thank you so much for your time, and Thank you so much.